Welcome to ASG. ASG believe in quality, commitment, and success. ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं यशा नासीत मत्माना तेषां मदित्व गावन प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, जो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इस श्लोक को मैंने भगवद गीता से लिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज आर द कॉरिडोर ऑफ द अनसर्टेनिटी. On December 25th, officials from China and Pakistan met the Urumqi, the capital of China's far western Xinjiang region, for the second meeting of the Joint Capital Working Group on International Cooperations and Coordination under the China-Pakistan Economic Corridor, attended by China's Vice President, Foreign Minister Luo Zhaohui and Pakistan Foreign Secretary Sohail Mahmood. The meeting was aimed at taking stock of the CPEC as it turns 5. Both sides held the progress of the plan despite the pandemic, declaring that both countries' close cooperation and mutual support amid COVID-19 has laid the foundation for economic recovery and injected new momentum into the construction of CPEC. The next most important news is the activist behind bars. The rights champion has been jailed for trying to undermine national security. My sister is not a terrorist. She is an activist, said Lina Al-Thalol, sister of Lojian Al-Thalol, the Saudi human rights activist who was sentenced to prison by an anti-terrorism court on Monday, to be sentenced for her activism for the very reform that MBS so proudly tout is the ultimate hypocrisy, she said in a statement referring to the Crown Prince Mohammed bin Salem by his initials. Ms. Lojan, a prominent advocate for women's rights in the conservative kingdom, was arrested in May 2018 along with others who campaigned for lifting a ban on women driving a few weeks before the ban was actually lifted. She was later charged for contacting organizations and diplomats that are hostile to Saudi Arabia. The arrest had gained international attention with the rights group asking the Saudi authorities to release her, but the kingdom did not relent. Ms. Lojian's case was transferred to an anti-terrorist court in November last year, and on Monday the judge found her guilty of various charges, including trying to harm Saudi Arab's national security and advance foreign agenda. The next most important source is the Hindu newspaper, नवभारत टाइम्स एंड दैनिक जागरण. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज का स्टार्टअप कल होगा एक MNC का आकार. आज का स्टार्टअप कल की मल्टीनेशनल कंपनी का आधार है. यही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार भी है. ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIM संबलपुर के अस्थायी कैंपस का शिलान्यास करने के बाद समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा. उन्होंने कहा कि प्रबंधन के क्षेत्र केवल लोकल और ग्लोबल के बीच सेतु की निभा सकते हैं. देश के तेज विकास के लिए औद्योगिक परिस्थितिकी संतुलन बनाना होगा. भविष्य के प्रबंधकों को देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा. इसमें इनोवेशन और तकनीक की अहम भूमिका होगी. परिसर का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने बताया, महान संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण उड़ीसा को जब प्रबंधन जगत में भी नई पहचान मिल, उन्होंने उड़ीसा के युवाओं को मजबूती के लिए IIM संबलपुर को एक महत्वपूर्ण संस्थान बताया. उल्लेखनीय, शनिवार को IIM संबलपुर की ओर से आयोजित शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ऑनलाइन शामिल हुए. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश के लिए गर्व की बात है प्रधानमंत्री मोदी. 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा ने खुशी जताई. प्रधानमंत्री ने कहा, यह देश के लिए गर्व की बात है. जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वे दोनों ही मेड इन इंडिया हैं. यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने वाला और हमारे वैज्ञानिकों की इच्छा शक्ति का परिणाम है. प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ मुहिम में शामिल वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को बधाई दी और कहा, यह भारत के लिए एक निर्णायक क्षण है. इस सफलता से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम तेज होगी. प्रधानमंत्री ने
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् को आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का आधार बताया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनलों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि देशवासियों का जीवन बचाने के लिए उनके सदैव आभारी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी से प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को बल मिलेगा और उन्होंने कहा, यह देश के कुशल नेतृत्व की जीत है जो यह दर्शाता है कि दूरदर्शी नेतृत्व एक बड़ा बदलाव ला सकता है।